when they go to the classroom, they will find all the white people there, and I might be the only one. Ah, Did that you, was so true. I mean, I was expecting quite a lot of like Gora people in the class. did you thought Or about it? The uh, same thing, like same vision. Did you had हाँ of like course of course of course मैंने इमेजिन किया था कि यानी यूनिवर्सिटी में तो था कि मुझे देखा अब ये गोरे जो है सारे फिर रहे हैं ये क्लास में भी होंगे एंड कोई कोई ऐसा मतलब आपको क्लासरूम में इनके अलावा कोई आपको गोरे मिले? नहीं बिल्कुल नहीं इंडियन के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आई मीन मैं देख के हैरान हो गया कि यानी जितना सारा दिन न्यूज चैनल्स के ऊपर वो लड़ाई झगड़े वाला माहौल रखते हैं आई मीन हम्म, पीपल आर वेरी लविंग मुझे याद है कि मेरा पहला दोस्त बना एंड ही वाज आस्किंग मी कि तुम कहाँ से हो तो मैंने कहा कि पाकिस्तान से एंड ही हग्ड मी एंड दैट ही वाज द फर्स्ट इंडियन आई मेट एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि वाओ आई मीन दे आर वेरी uh, लविंग when you say I'm from Pakistan, he hugged you. Yeah, he hugged me, and इस Huh? तरह हमारी मेरी उससे दोस्ती हुई, and I was so happy. His name is Viplav, और वो Hmm. मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, and और मैं हैरान हो गया मैंने पूछा तुम कहाँ से हो तो he was like I'm from गुजरात मैं कहता तुम्हें पता है कि गुजरात पाकिस्तान में भी है कहता oh Yeah. that's very sweet and he hugged me again. Yes. Yes. Hello, everyone. Today we got another beautiful guest. Mr. Tahir has been working in insurance and customer care and also the recruitment industry since a long time. He has been working with a company who provide nurses and hospitality staff in the UK. And now Tahir is in UK doing a master degree program. So Tahir has some very good stories to tell about his experience in the UK and what have he done so far. He's he got a part-time job while he's doing his master degree. So instead of I'm telling about Tahir, let's hear what Tahir says about himself and what story he have to tell us today. So I'm very sure that Tahir has so many stories to talk about. Before we started recording, we were talking about some of the stories, very interesting, very beautiful stories. So please stay with us, stay tuned on this podcast. There are a lot to learn for all the audience. This podcast, especially, we are going to do it in multilingual, which is going to be in Hindi, Urdu, maybe some Punjabi mix, and at the same time it will be in English as well. So Tahir is very comfortable with all these languages. Of course, he's from Apna, Pakistan. So welcome, Tahir. How are you today? I am very good, sir. Thank you so much for bringing me here and giving me this opportunity. And I'm very thankful and thank you so much, really. And for every Indian friend of mine, namaste, everybody. Namaste, namaste. It's Tahir, by the way, our channel reach is not just India, Pakistan, Mhm. it's Bangladesh, other Asian countries like Yes, Vietnam. mhm. Our reach is in China, Yemen, Saudi Yes, Arabia, Nigeria, and Canada, Australia. Of course, there are a lot of our Indian and Pakistani people are there. So the reach is very good. We are getting really good response, and also thank you very much for you guys who are coming forward to do the podcast with me and sharing your experience and views to the people who are in our countries, and they want to come to the UK as a student or as a professional as well. So the aim of this podcast is to spread the ground reality of the UK, because I have watched many of the YouTube channels. Many people are talking about so many negative things. Some people are talking about so many positive things. So we need to had a we thought we should be having a channel which is balanced, which mhm. gives the actual reality, not just negative or not just positive. We hear the actual stories of the people, their journey, what they have done so far, how did they came to UK, and what they are doing now. What is their success story so far? What strategies they have adopted, and what tips they can offer to the people who actually wanted to come to UK and start a good life in the UK.
Mhm. So this is what the aim of the channel. I think we should start with your own introduction. If you please start, let's do it in Urdu first. ओके एंड थैंक यू आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और मैं एक छोटा सा बस एक बिजनेस प्रोफेशनल हूँ हु हैज़ अबाउट 7 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस तो मैंने 7-8 साल डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में काम किया है helping out businesses in terms of development, reaching out with clients. So I would say that I was accomplishing in my country. I was born up like lower middle class, and when I finished my graduation, because I've done my post graduation in business administration also, तो मैं अपनी country में यानी एक मुझे लगता था एक A class worker था, which I desired to be when I was studying. And I've seen all of my growth. I built my own house at a youngest age of 27. And I was living a very happy life. Then I decided कि मुझे अपने आप को grow करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, because I've seen quite a lot of other people having amazing skills and being an international person. I mean, I wanted to earn internationally and compete with international people. तो ये मेरा मेन मकसद ये था कि मैं और बेहतर दिमागों के साथ काम करूँ और सीखूँ कि वो लोग कैसे काम करते हैं। एंड वन थिंग वाज़ द थंबनेल ऑफ इट कि डू द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो और वहाँ पे काफ़ी अपग्रेडेड एजुकेशन का फुकदान था और ऐसा इम्पॉसिबल नहीं था, तो मैंने ये बहुत बड़ा रिस्क लिया एंड आई डिसाइडेड कि मुझे अपनी डेवलपमेंट पे और काम करना चाहिए, बिकॉज़ देयर इज़ सो मच टू ग्रो विद इन योरसेल्फ। या श्योर श्योर। तो ताहिर, अब पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं एग्जैक्टली, किस सिटी से हैं? जी, मैं लाहौर से। लाहौर में एक जगह है बाल तो टाउन, वहाँ से। या लाहौर में आई थिंक फूड कुछ बहुत मशहूर है क्या? लाहौरी लाहौरी चने। जी, बिल्कुल। क्या कहते हैं, अपने घर याद पंजाबी दिला बहुत पंजाबी। किस्म के नाश्ते होते हैं। लाहौरी बस सिर्फ नाश्ता तो घर से करते ही नहीं ना, वो बाहर से नाश्ते करते हैं। हाँ, नान, चने, हलवा पूरी, चने भटूरे और सिरी पाए, निहारी। तो यस यस यस। लाहौरी इज़ आई नो अबाउट फूड। यहाँ पर भी बहुत सारे लाहौरी रेस्टोरेंट हैं, लाहौर के हाँ, नाम मैंने से ही। एक्सपीरियंस किए हैं ना। एक तो रेस्टोरेंट में जाके ऐसा लगा कि जैसे इवन कि वो न्यूज़ चैनल भी उन्होंने वही वाला लगाया था, एंड आई वाज़ सो हैप्पी कि थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान वाली फीलिंग आ गई। हाँ। ओके, तो आप हमें ये बताएँ पहले कि आपने यूके आने का कैसे सोचा? मतलब वो आपने ये तो बताया कि आपको करना था इंटरनेशनल मार्केट में, यू थॉट कि इंटरनेशनल मार्केट में जाके कुछ करना चाहिए। आपके हुँ, अंदर वो जज़्बा था कि मुझे हुँ, कुछ करके दिखाना है। हुँ, बिकॉज़ आपने जैसे कहा कि आप लोअर मिडल क्लास फैमिली से आते हैं, तो दैट वाज़ बिल्डिंग अप कि मुझे एक दिन कुछ करना है। जी, तो बिल्कुल। वो ऐसा कौन-सा इंसिडेंट था जिससे ट्रिगर किया कि यार बस अब हो गया, लेट्स लेट्स गो टू यूके नाउ? वो क्या था वो इंसिडेंट? आप बताएँगे? सबसे मेन बात ये थी कि मैं अपने जो छोटे-मोटे इंसान के गोल्स होते हैं वो अचीव कर चुका था, और उसके अलावा दूसरा मैं ये चार्ट देख रहा था कि यानी जिस तरीके से मैंने अपने आप को इमेजिन किया था कि मैं बनना चाहता हूँ, वो वहाँ पे मुझे बूटस्ट्रैप कर रही थी। बिकॉज़ उतना उतना सरमाया और इतने पैसे मैं इकट्ठे नहीं कर सकता था, पर ये कि मैं एक डेवलपमेंट पे अपनी खर्च कर सकता था कि मेरे में इतनी क्वालिटीज़ पैदा हो जाएँ कि मेरे में ये वाला बूटस्ट्रैप से निकल सकूँ। अ, और मैं और ज़्यादा ग्रो कर सकूँ, बिकॉज़ इंटरनेशनल मार्केट में लोगों के पास बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं और जहाँ यहाँ पे बहुत राइट्स होते हैं, और आप पाकिस्तान में रह के कंपेयर नहीं कर सकते। आपको वो पे रेट, इवन ऑनलाइन रेट ऑफ पे वो स्केल नहीं देते, व्हिच इज़ रियली एम्बैरेसिंग। तो जब मैंने ये फेस किया तो आई फील लाइक आई रियली वांट टू बी एट सम लेवल जहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन एटलीस्ट खत्म हो जाए, आपका रेट ऑफ पे और ये सब चीज़ों का ना। हुँ, अ, हुँ। और आप एक अच्छा अर्न करो और एक अच्छी जगह जा सको। और यहाँ का सिस्टम एक ऐसा है कि अगर आप यानी एक नॉमिनल आदमी भी हो और एक एवरेज माइंड के सेट भी हो, तो ये सिस्टम आपको ऊपर तक लेके जाता है, काफ़ी अच्छा वो करता है। हाँ, तो आपने आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात की, चलिए पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर आपकी जर्नी पर हम बाद में आएँगे। तो डिस्क्रिमिनेशन की आप बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन जो वहाँ पर था, डू यू फील दैट डिस्क्रिमिनेशन इन यूके एज़ वेल?
uh, at some points, पर वो एरियाज ही डार्क साइड्स में जाते हैं, तो मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा. लाइक लेट्स से कि लोग यहाँ पे आपको ऑफर करेंगे कैश इन हैंड जॉब्स एंड स्टफ व्हिच इज रियली अ डार्क साइड ऑफ इट. बट स्टिल क्या कहते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बेहतर हैं. और अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज की तलाश है, तो अगर आप में स्किल्स हैं और आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करके आए हो, और आपके पास अंदर स्किल्स भी एक, तो आपको जॉब मिल जाती है यहाँ पे अच्छे अच्छी इसमें ग्रेजुअली, जस्ट अबाउट योर एफर्ट्स. हम्म। हाँ, देखिए आपने ये वेल सेड कि थोड़ा सा वो नेगेटिव साइड हो जाती है, और वो नेगेटिव साइड है भी यहाँ पर, वो हम उसको डिनाई नहीं करते, इट इज देयर. in some cases discrimination is everywhere, but in some countries, like I would say, I won't name a country, but I would say in some countries is more, but some countries is less. As long as you are in an environment कि आपको लगता है कि किसी environment में वो है, किसी environment में वो नहीं है. Even हम एक country की के अंदर एक city की भी बात करें, या एक एक गांव, एक कस्बे, एक village की भी बात करें, तो हो सकता है वहां पर हो और दूसरे में ना हो. तो नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह है, बट बिल्कुल. या तो चलिए बात करते हैं. आपको वो ट्रिगर फिर आपको कैसे लगा कि भाई मुझे अब मेरा टाइम आ गया है कि मुझे यूके जाना है? तो जब मुझे ये ऐसा ऐसा फील होना शुरू हुआ कि मैं फिर जितना मर्जी काम कर लूं, मैं एक यूके के सिटीजन ये उतने जितने पैसे नहीं कमा सकता और उतने बेनिफिट्स और एक्सप्लोर नहीं कर सकता अपने कंट्री में, बिकॉज ऑफ several reasons to be honest. हाँ, हाँ, ओके. लेकिन तो फिर मैंने डिसाइड किया कि दिस इज द बेस्ट टाइम, और क्या कहते हैं, एंड आई हैव डन क्वाइट अ लॉट. और इसके बाद अगर मैंने वो किया, तो फिर मुझे या तो चांस नहीं मिलेगा, देन आई विल बी इन अ पोजीशन टू आइदर बी गेटिंग मैरिड एंड स्टफ. तो मेरी एक डिफरेंट स्टेज शुरू हो जाएगी. उसके बाद मैं अपनी लाइफ के साथ ये रिस्क ले नहीं पाऊंगा. एंड so yeah, that's how I Yeah, decided to. I think that this is the right age as well. If you want to do something like want to settle abroad, तो ये जो आपकी एज है वो एक राइट एज है. इसके अगर बाद में फिर होता है तो फिर आई थिंक फिर वो एक रिस्ट्रिक्शन भी हो जाती है कई बार के फैमिली को लेके जाना है, और वो बहुत सारी चीजें हैं, तो वो एक्सपेंसेस भी ज्यादा हैं. But yes, many people come with the families as well. They are doing really well. I'm not saying that this is negative thing, but that is good as well. क्योंकि मेरे केस में यही हुआ था कि मेरी फैमिली, मैं मैरिड था, मेरी फैमिली मेरे बाद में आई है, तो आई वाज वेल ऑफ आफ्टर फैमिली केम. तो क्योंकि 2 लोग हो गए थे काम करने वाले, जी. तो वो अब पैसे कमाना और फीस वगैरह निकालनी वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया था. चलिए, सो व्हेन वाज दैट व्हेन यू केम टू यूके? व्हाट लाइक कितने मंथ हो गए आपको यहाँ पर? About 4 months. 4 months. Okay, so you came in January. Yes, January. But I came in 21st December. तो मेरे Yeah, पहले January Christmas. intake. January जी. intake. Okay. 21st December. So you celebrated Christmas here. जी, बिल्कुल. Okay. Did you like that environment during the Christmas over here? Oh yes, very amazing. और मैंने पहली दफा इतनी cheer up celebrations देखी थी, and lights and music all over. So that was amazing experience. Did you manage to visit Christmas market that time, or that was? I think that Yes, that yes, yes, yes. I did shopping. I did a lot of shopping. okay. So I think the actual Christmas market get closed on 21st or 22nd December Mhm. always. But I don't know if you had that experience. Okay. तो जब आप वहाँ से आए, तो आपने वहाँ से जॉब वगैरह सब छोड़ के तब आप आए, या फिर कुछ और आपने बनाया कि मैं वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम अदर कंट्री, क्या किस तरह से था? नहीं, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे मूव ऑन है, देन आई गिव अ 3 months नोटिस टू माय कंपनी. और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक अपना एजुकेशनल ब्रेक चाहिए. So I would really like to, upskill myself, and then I'll be able to maybe perform better, maybe in a higher position, because that's why I picked the operation management course, क्योंकि इस कोर्स का acceleration काफी अच्छा है in terms of career wise. So they allowed me to do it. और उन्होंने कहा कि even if you like to come back and rejoin the firm, we'll be happy to have you. Uh, so that's how I decided. तो इस तरह मैंने किया. और
ओके। तो आपने जब वीज़ा वगैरह डाला वहाँ से, आपने लाहौर से अप्लाई किया या इस्लामाबाद जी, से किया? जी, जी, लाहौर से लाहौर अप्लाई से, ओके। लाहौर से आपने अप्लाई किया, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो वीज़ा, पेपर वर्क और वो सब? वाज़ इट चैलेंजिंग? वाज़ इट रियली हार्ड टू गेट अ वीज़ा फ्रॉम देयर और कितना टाइम लगा उस प्रोसेस में? हाँ, मैंने प्रोसेस में तकरीबन 3-4 मंथ लगे। सबसे पहले मुझे अपना कैश लेटर लेने में काफ़ी अरसा लगा। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स थी, बैंक स्टेटमेंट्स, फंड्स अरेंजमेंट करने थे और आपको पता है कि आपको लिक्विडिटी शो करनी पड़ती है। सो आई हैड टू लिक्विडेट माय assessed into different forms ताकि मैं उनको डिस्प्ले कर सकूँ। देन उस टाइम कंट्री में काफ़ी ज़्यादा फॉरेन करेंसी का भी फुकदान चल रहा था, काफ़ी इन्फ्लेशन थी जिसकी वज़ह से शॉर्टेज थी। सो आई मैनेज्ड टू accumulate द फंड्स टुगेदर और उसके बाद पेपर वर्क थोड़ा-सा डिफिकल्ट था, इट टूक अ लॉट ऑफ टाइम और मुझे आईएलटीएस का एग्ज़ाम्स देना पड़ा एंड दैट टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो। उसके बाद फिर अ मुझे एम्बेसी ने इंटरव्यू भी किया था। दे टॉक टू मी फॉर फेस टू फेस फॉर अबाउट एन आवर एंड मेक श्योर आई एम द राइट पर्सन। बट इट वाज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बट पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था। दे रिक्वायर्ड ईच डॉक्यूमेंट्स विद यू। सो मैं एक बहुत बड़ी फाइल लेके आया था अपने साथ जिसके अंदर मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, जिसके अंदर मैंने वो मार्क किए हुए थे कि इसमें ये इस कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरी यूनिवर्सिटी के साथ मेरी टैक्सी बुक हुई हुई थी और टैक्सी की रिसीट भी थी और उनका फ़ोन नंबर भी था और मेरे पास पहले से ही, तो मैं काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर करके गया था बिकॉज़ आई एम वेरी हैंडी पर्सन। मैं अभी भी अपनी नोटबुक्स और वो साथ रखा हुआ है, तो आई जस्ट लाइक टू चेक थिंग्स। इसी वजह से इमिग्रेशन वालों ने मेरे से ज़्यादा सवाल भी नहीं किए। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा फाइल लेके आया है, इसके पास हर सवाल का जवाब है। फाइल खोल के बैठ गया तो पूरा दिन इधर ही लग जाना है। उसने मुझे कहा कि डू यू नो हाउ टू वेयर टू करेक्ट योर बीआरपी? मैं कहा उसकी भी फाइल है। कहता नो नो दैट्स फाइन, जस्ट गो। So you was well organized actually with the paperwork. या Yeah. So that is good thing. And you know, some of the people get stuck on immigration when they don't have the right paperwork. And I have seen myself. I was in the queue, and they stopped some of the students, and they didn't know where to go. They don't have any phone number, and they said we are just going to this university. At least carry some of the phone numbers of the university where you are going. Have you booked the cab or not? So all that information you need to have, or where is your accommodation at least, you know. And the main thing is in UK you need a postcode, like we have यस pin एग्जैक्टली। codes in India. इधर पोस्ट कोड होते हैं, वो पोस्ट कोड में वो वो एक होना एग्जैक्ट चाहिए। आपका डोर एड्रेस मिल जाता है और वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। हाँ, वो आपको उस घर के आस-पास तो पहुँचा ही देगा, लाइक विदिन हुँ, 20 मीटर्स, वो हुँ। पोस्ट कोड आपके पास होगा तो। चलिए, तो आपने वो प्रोसेस किया, देन यू गॉट द वीज़ा फाइनली आफ्टर इंटरव्यू एंड ऑल दैट। तो उसमें आपके 3-4 महीने लग गए उसके अंदर। जी। So when you get the visa, what was the first feeling you had and what was the expression of the family? My mom was so happy, she was in Pakistan and तो वो बहुत खुश हो गई थी एंड uh, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा अ, रोने भी लगी वो। Mm, बिकॉज़ शी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स और ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारे ऑर्गेनाइज़ होने में और मुझे इन सब चीज़ों के लिए एनकरेज करने में, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप क्योंकि आई नेवर रिस्क सो मच इन लाइफ, क्योंकि मैं एक छोटा बिज़नेस वो था प्रोफ़ेशनल, तो मैं अपनी अपने फंड्स और उसके साथ अपने कभी मेरे में इतनी एनकरेजमेंट नहीं हो पाती कि मैं वो अपने एसेट को अपने ऊपर इस्तेमाल करने पे, बिकॉज़ मेबी बिकॉज़ आई वांटेड टू कम्फर्ट माय मदर एंड शी वांटेड टू कम्फर्ट मी बैक। तो mm. वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्हीं की वजह से यानी काफ़ी इसमें मुझे You know, that is a big risk when you हुँ, are converting your assets into liquid and using that for something which is unknown, like what you are going to achieve until unless you achieve it, because the future is unpredictable. You never know what's going to happen. हुँ। So you need courage to take that risk, of course, and that is overwhelming as well for you yourself and the family. And that was Always. just not the funds, that was mainly the if investment in different areas. So मुझे जब Mm, जो भी मैं पैसे सेव करता था, I used to invest in like gold and other stock and other stocks, तो और that was actually making me money and मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि I would just did it for the purpose of learning it। तो वो mm, तो वो चीज़ मुझे बंद होती, तो वो that was mainly कुछ
केमिकल रिलीज करते थे मुझे खुशी देने के लिए, दो आई नेवर यूज दैट मनी। तो पर वो चीजें बंद हो गई तो मुझे फील हुआ कि So that was your hard-earned money, actually, यस, वेरी वेरी what you're वेरी spending वेरी। on your studies, which is good. In a way, this is another investment you are making now. दैट्स But सो this ट्रू। time you are investing on yourself, isn't it? Okay. So you got the visa, everything cleared. Now you came to UK. Did you came to Manchester directly, or you came to London first, or? I came to Manchester directly, and my aunt lives here. तो वो बहुत ज़्यादा मेरी फूफू हैं, and she's a beautiful and amazing person, and she's a civil servant in the UK. तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से वेलकम किया और काफ़ी अर्से तक अपने पास रखा, और और Are फिर you staying with your aunt? not right now. Then now I have moved on. Okay. into my apartment. पर ये कि उन्होंने मुझे काफ़ी अर्से हेल्प किया, एंड ही वाज़ वेरी जनरस टू मी। पर ये कि यूनिवर्सिटी पर स्टूडेंट्स को ये ज़रूर चाहिए कि यहाँ पे अकोमोडेशन का काफ़ी ज़्यादा इशू है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स भी होते हैं, आपसे लोग पर सब्सक्रिप्शन चार्ज पता नहीं क्या-क्या करते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप अ, ध्यान से ही करें, मेक श्योर कि आप यानी एक ऑथराइज्ड डीलर्स से बुकिंग करें, और यानी एक वैलिडेट सोर्स से, नॉट जस्ट फेसबुक पेज और रैंडम स्टफ। क्योंकि शुरू में आपका एक सही जगह रहना बहुत ज़रूरी है, बाद में आप कहीं एक प्राइवेट अकोमोडेशन में भी मूव हो सकते हैं, बट Hmm. इनिशियली यू हैव अ सॉलिड ग्राउंड, वरना आपको बहुत मुश्किल का सामना हो सकता है। हाँ, सही जगह, I think what you mean is a proper accommodation without getting stuck with हुँ। somebody who is fraud or something like उनकी that. वेबसाइट है जो ऑथराइज़ हैं, और जैसे यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन है, आप बेहतर कोशिश करें कि यूनिवर्सिटीज़ की अकोमोडेशन या जो भी वैलिडेट अब थर्ड पार्टी है उनसे वो करें, एंड और Now, बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं, आई गेस एम्बर एंड अदर। yeah, आपने बोला सही जगह रहें. Now, some people might assume that you mean that safety wise, security wise. So can you please make it clear that are you talking about security wise, or you talking about like in terms of fraud, that fraud में ना जी, फंसे? यस, इन टर्म्स ऑफ फ्रॉड के आप ऐसी जगह बिल्कुल भी पिक ना करें जिसकी आपको सिर्फ पिक्चर्स दिखी हैं, एंड यू डोंट इवन नो कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। यहाँ पे पूरा यूके सेफ है, तो आप सुबह में फिरें या रात में फिरें, आपको एक ही फीलिंग आएगी। हाँ, how do you feel about security in the UK? Like आप किसी भी जगह रह रहे हैं, आप do you ever feel that you are unsecure or anything? नो नो नो, देयर इज नो स्टेयरिंग एट ऑल, हर बंदा बहुत ज्यादा अपने काम से काम रखता है। पीपल आर वेरी फ्रेंडली, वेरी जनरस, वेरी हेल्पिंग Yeah. in terms of if you need any help, पर बाकी ये कि I don't feel like कि कोई person invade करता है, they're looking around, they're treating you differently, it's not like that, it's all Yeah. safe। In return, you have to be friendly as well. You have to be Yes, of kind as well. course, yeah। It's give and take. ओके, तो आपने चलो आपके साथ ये बहुत अच्छा था कि आपकी आंट यहाँ पर थी, तो इनिशियली आपकी आंट ने आपको वेलकम किया, आप उनके साथ रहे भी, और आपने ये मेंशन किया फ्रॉड के लिए कि जो लोग आ रहे हैं वो थोड़ा फ्रॉड से बचें। नॉर्मली द पीपल हू आर एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स, उस तरह की जो लोग हैं ना, हो सकता है वो फ्रॉड कर रहे हो, आपसे डिपॉजिट ले लें और जब आप यहाँ पहुँचे तो कुछ हो ना आपके पास। बिल्कुल। ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट हमारे सामने आते हैं। Tahir, do you heard about this type of incident, or any of your friend faced this kind of incident that accommodation का fraud हुआ हो? ऐसा मेरे सुनने में तो नहीं आया, पर ये कि यानी मैं जब बुक कर रहा था तब मुझे इस तरह के काफ़ी ज़्यादा लोग मिले जो ये इस तरह कर रहे थे, बिकॉज़ आई हैव सर्च अ लॉट फॉर अकोमोडेशन। और फिर मैंने ऑन से बात की बिकॉज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट हुँ, उन्होंने सुनने से पहले ही मुझे कहा कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट एनीमोर। तो दैट वाज़ वेरी जनरस। पर जब मैंने शुरू किया तो मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, हुँ, बट आई गॉट ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, पर ये बहुत ओके, सेंसिटिव एरिया है। या ओके। वैसे यहाँ पर यूके के अंदर काफ़ी अकोमोडेशन फ्रॉड होते हैं, हुँ। और जॉब से रिलेटेड फ्रॉड भी होते हैं। उसके लिए हम अभी वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं। तो एक वीडियो मैंने अभी पीछे डाली थी सोलो जॉब्स से रिलेटेड, और अभी उस तरह की वीडियोज़ हम इस चैनल के ऊपर लाने वाले हैं ताकि उनको आप हमारी ऑडियंस को पता चले कि उन फ्रॉड्स को किस तरह से बचना है,
किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और आप कैसे बच सकते हैं और आपको Yes, yes. कहाँ पर हेल्प मिलेगी अगर इन केस किस तरह इसी तरह का इंसिडेंट होता है तो। जी। तो चलिए तो फिर आप यहाँ पर आ गए। तो आपके आने के यू यू केम ऑन 21st ऑफ डिसेंबर, सो योर कोर्स स्टार्टेड बाय एंड ऑफ जनवरी आई थिंक, जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। yes. हाँ, तो आपका First of कोर्स कोर्स स्टार्ट हो गया, आप यूनिवर्सिटी गए, व्हाट वाज़ योर एक्सपीरियंस एट द यूनिवर्सिटी? तो पहले दिन तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि स्नो हो रही थी। और मैं पहली दफ़ा मैंने स्नो देखी यूके के अंदर, और मैं सुबह उठा तो मुझे हर चीज़ व्हाइट-व्हाइट नज़र आई, और सारा यूके थोड़ा-सा स्लो होता नज़र आया। पर एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज़ माय यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैंने पहली दफ़ा बहुत ज़्यादा डाइवर्स लोगों को ऑफ कोर्स थ्रू आउट द वे, बट स्टिल लाइक यंग स्टूडेंट्स एंड competing people and talent, and then I get the feeling of कि इनके साथ compete करना है, Hmm. तो it was a nice experience. Okay, so normally, when people are in our countries, they think when they go to the classroom, they will find all the white people there, and I might be the only one. Did That was so true. I mean, I was expecting quite a lot of like Gora people in the class, did you thought or about it? The um, same thing, like same vision did you had? हाँ, Like, ऑफ कोर्स मैंने इमेजिन किया था कि यानी यूनिवर्सिटी में तो था कि मुझे मैंने कहा ये गोरे जो है सारे फिर रहे हैं, ये क्लास में भी होंगे, आई एम uh, श्योर कि, बट व्हेन आई गेट इनटू द क्लास तो मेनली मैंने ये देखा कि आई मीन 60% के करीब कोई यू विल सी कि नाइजीरियन थे। आई मीन देयर वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ नाइजीरियन पीपल, और इंडियंस थे, वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ पाकिस्तानीज एंड कैनेडियंस ओवरसीज प्रोग्राम में थे। तो पर मैंने इन लोगों को ज़्यादा देखा, तो दैट वाज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस के, बट did, कोई कोई ऐसा मतलब आपको क्लासरूम में इनके अलावा कोई आपको गोरे मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं। So that was mostly Indian and Nigerian people. So I, हुँ, I think the split is about, let's say, 95% are Indian and Nigerian people, हुँ, including Pakistani. I would हुँ, say Indian Pakistani in the same सो ट्रू, region. So it's about 95% and all that, and then 5% is like from different countries. The scatters one or two from other countries. So it is like that. But anyway, how was your experience when you saw the people from different cultures, specifically from Africa and India? Let's say, so, what was your experience with those people, students? That was very nice experience. I mean, I get to see that they are very generous. Indians के साथ बहुत अच्छा experience रहा। I mean, मैं देख के हैरान हो गया कि यानी जितना सारा दिन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर वो लड़ाई झगड़े वाला माहौल रखते हैं। I mean, Mhm. people are very loving. मुझे याद है कि मेरा पहला दोस्त बना, and he was asking me कि तुम कहाँ से हो? तो मैंने कहा कि पाकिस्तान से, and he hugged me, and that he was the first Indian I met. And I was so impressed. Okay, wow. I mean, they're very So, loving. when you say I'm from Pakistan, he hugged you. Yeah, he hugged me, and इस Huh? तरह मेरी उससे दोस्ती हुई, and I was so happy. His name is Viplav, और वो Hmm. मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। और मैं हैरान हो गया, मैंने पूछा तुम कहाँ से हो, तो he was like I'm from गुजरात। मैं कहता, तुम्हें पता है कि गुजरात पाकिस्तान में भी है? कहता, oh, Yeah. that's very sweet, and he hugged me again. Yes. Yeah. Some of the part of Gujarat is in Pakistan. Some of the part is there. 1947 सुन लो, जो लोग इंडिया पाकिस्तान में बैठे हैं ना, सारा दिन न्यूज़ ना देखा करो, ऐसे चैनल भी देखो जहाँ पता चले कि दुनिया में हो क्या रहा है एक्चुअल में। नहीं, मैं अगर कहूँ कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स इंडियंस हैं, आई हैव सीन, आई वेंट टू टेम्पो उनके साथ, आई हैव अ राइस पुडिंग विद देम, और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से वेलकम किया, एंड एवरीबॉडी ट्रीट मी एज इक्वल फ्रेंड, एंड मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये हम एक हमारे कंट्रीज के बीच में एक बॉर्डर भी है। सो आई मीन, और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दे ऑलवेज आस्क मी कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, और दे रियली अडोर मी, कि मैं मेरी मेरे ऐसे ही होने से मुझे मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और प्यार दिया, व्हिच इज़ रियली अमेजिंग। तो इसी वजह से मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे एक अमेजिंग एक्सपीरियंस देखने को मिला है। आई थिंक ताहिर, ऑल्सो
because of social media nowadays, YouTube, um, youngsters specifically from both the countries, they are getting to know each other much closely. बहुत सारे यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान में हैं, वो इंडिया की बात करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो इंडिया में हैं, वो पाकिस्तान की बात करते हैं। इफ यू जी जस्ट डोंट बॉदर अबाउट न्यूज़ चैनल्स, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मुद्दा को उनको कुछ ना कुछ चाहिए कि एक मिर्च मसाला लगा के उसको पेश कर दें बस। उसको अगर हम छोड़ दें और अगर हम रियल जो लोग हैं इंडिया और पाकिस्तान के, अगर उनके बारे में बात करें ना, तो उनका व्यूज़ टोटली डिफरेंट है। और वो यूके जैसी कंट्री के अंदर अगर आकर देखें, तो हम लोग, अब मुझे इतना टाइम हो गया, आई गॉट अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी फ्रेंड्स। We स्वीट we celebrate Eid together. We celebrate Diwali together. We celebrate. We go to. I mean, वो लोग हमारे जो भी त्योहार होते हैं जिसमें कि हम पूजा पाठ भी करते हैं, वो आते हैं। अगर किसी को, अभी एक इंसिडेंट हुआ मेरे फ्रेंड के साथ में, मतलब हमारा कॉमन फ्रेंड, उसने कहा कि व्हाई डिडंट यू इनवाइटेड मी टू दैट पूजा? ही इज स्वीट फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही सेड व्हाई डिडंट यू, व्हाई आर यू डिस्क्रिमिनेटिंग मी? स्वीट ही वो घर आया और वो लड़ा उस बात पे आके कि हमारे मतलब इतने अच्छे रिलेशन हैं, और वो तो व्हाई, हाउ कैन यू डू दैट? तो ये चीज़ वहाँ पर वो जो न्यूज़ मीडिया में चलती है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। बट ओके, लेट्स गो बैक टू द दिस टॉपिक। So, but I think we should talk about it, you know. नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इसी बात में बड़ा इमोशंस जुड़ा है और ये सिर्फ बंदा जो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो वही अंडरस्टैंड कर सकता है कि यानी यहाँ पे इस वजह से लोग एक दूसरे से कितने मोहब्बत स्प्रेड करते हैं। मी विच इज अमेजिंग कि हाँ, वही ना। आपको सिख मिलेंगे यहाँ पे बहुत प्यार से और हुँ। आपको इंडियंस मिलेंगे बहुत प्यार से। कभी मतलब you never have a negative thought about the person बिल्कुल who भी is from नहीं। India, or is Indian person, they never have a negative thought about the person who is from Pakistan until unless something bad happen, you know. that's so true, yes. Yeah, that's a different story. But there is always good experiences and bad experiences. But so far, I never had a bad experience with the Pakistani people. Sweet. I'm really grateful. I feel blessed that I have those people around me, and at the same time, I'm blessed that I have Indian people around me as well, and we are friends together, which is Yeah, I'm really, very happy about it. and I'm really blessed that I have people from Africa, people from Sweet. Nigeria around me, and I believe you know that a lot of people follow me on not just here, but in other environment as well, on LinkedIn and all. So which is really good. Okay, so you came here and your university, your experience with the people was, I think, is amazing. Yeah. Now, what about the study environment? What difference did you feel in the study environment if you compare with the Pakistan and the UK? Education wise, it's totally different. I mean, back in Pakistan, आपको एग्जाम्स होते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स देते हो, you scored it, और फिर आप अपने डिफरेंट सेमेस्टर में जाते हो। यहाँ पे असाइनमेंट बेस्ड है और मेनली you have to do it citation and referencing, जो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैंने इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था, दो आई हैव स्टडीड रिसर्च एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन द पास्ट, पर मैंने कभी डेजर्टेशन या साइटेशन और इस तरीके से काम करना नहीं सीखा था। तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। मुझे काफ़ी टाइम यूनिवर्सिटी में गुजारना पड़ा, 2-2 रातें, 3-3 रातें, और काफ़ी कुछ सीखना पड़ा। और तो पहला महीना मेरा, मुझे याद पड़ता है कि मैं हर रोज़ यूनिवर्सिटी जाता था, और यानी रात को 8 बजे की बस से कभी-कभी लेट हो जाता था, तो मुझे वो कैब लेनी पड़ती थी कि मैं अच्छा, अब थक गया हूँ। और आपको पता है कि सर्दियों में जल्दी रात हो जाती है, अब तो खैर 8 बजे भी दिन रहता है। हाँ, ये एक डिफरेंस आपको मिलेगा, और ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग सा है। अभी आफ्टर सम टाइम व्हेन इट कम्स टू जुलाई, एक्चुअली पहले मैं ऑडियंस को बता दूं, तो सर्दियों में यूके के अंदर सुबह 8:30 बजे सनराइज होता है, 8:30 के आसपास।
मतलब सनराइज तो थोड़ा पहले हो जाता है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, आपको डार्क ही नजर आएगा। और हम्म, क्लाउडी बहुत वेदर होता है, रेनी सीजन होता है, तो पता भी नहीं चलता है। पूरा पूरा दिन आपको हफ्ते हफ्ते तक कई बार सूरज दिखता नहीं है। तो सूरज तो संडे मेरे ख्याल से इसीलिए नाम रखा है, वो संडे को ही दिखेगा थोड़ी देर के लिए। और वो भी बिल्कुल। ऐसे कि जैसे किसी ने एक 0 वाट वाला जो बल्ब होता है ना, वो ऑन कर दिया हो। हम्म, इस तरह से उसकी उसकी कोई गर्मी नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरा, शाम को 3:30 बजे फिर अंधेरा हो जाता है। तो दिन बहुत छोटा होता है सर्दी के अंदर। गर्मी के अंदर उसका ऑपोजिट हो जाता है। गर्मी में सुबह 4 बजे आपको इसकी रोशनी दिखेगी। और हम्म। रात को 10:30 बजे तक, अगर आप जब जुलाई में पहुंचेंगे ना, तो आपको रात को 10:30 बजे तक आपको धूप दिखेगी। ओह वाह। और रात को 2 बजे अगर आप उठेंगे, और 2 बजे उठ के अगर आप नॉर्थ साइड में देखेंगे, तो आपको आसमान में वो जो इवनिंग वाला जो होता है ना, रेडिश, वो दिखेगा रात को 2 बजे भी। हम्म। तो और 4 बजे फिर सूरज निकल जाएगा। वो गर्मी में इस रियली अमेजिंग कि आप अगर घूमने कहीं जा रहे हैं, तो आपके पास बहुत लॉन्ग डे है घूमने के लिए। तो रात को 10 बजे 11 बजे तक आप बड़े आराम से घूम सकते हैं। हाँ, बस ये है कि गर्मी होनी चाहिए। वो हम्म। वेदर जो है ना, यहाँ पे कभी भी चेंज हो जाता है। चलो, दैट वाज वन ऑफ योर एक्सपीरियंस। और अभी आप एक्सपीरियंस करेंगे उसको, बट दैट वाज गुड एक्सपीरियंस। द फर्स्ट डे ऑफ द यूनिवर्सिटी यू सॉ स्नो, एंड स्पेसिफिकली इन मैनचेस्टर। मैनचेस्टर यस। में स्नो कम होती है। मैनचेस्टर के आसपास, लाइक विद इन 15-20 माइल्स हिल्स हैं। उन हिल्स के ऊपर स्नो होती है, क्योंकि मैनचेस्टर इज अ वैली। वैली में वो स्नो कम होती है, और फिर गर्मी होती है ना सिटी हम्म। की, तो वो स्नो कम पड़ती है। But anyway, that you experienced that was a I believe that was a good experience as well. Now, स्टडी वाइज आपने बात की कि थोड़ा सा क्या बहुत डिफरेंस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आइल्स आपने किया पाकिस्तान में, डू यू थिंक वो आइल्स करना बेनिफिट होता है व्हेन यू कम डाउन टू यूके एंड डूइंग स्टडी हियर? डज दैट ऐड एनी वैल्यू टू यूके और यस स्टडी? फॉर श्योर, आई मीन उसके बगैर आप यानी वो आपको एक व्यू देता है कि आपको कितने यानी कितना थॉरली रीडिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। आप बहुत ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, सारा सारा दिन लगती है, सारी सारी रात लगती है। और यानी ये सारा सारा दिन और सारी रात पाकिस्तान वाले नहीं, यहाँ पे बहुत तेजी से गुजरते हैं दिन, यानी टाइम का वक्त का पता नहीं चलता। ये एक बहुत बड़ा बड़ी बात है जो हर यहाँ पे परदेसी आके ये जरूर कहता है कि यहाँ वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता। वहाँ तो बैठे बहुत भी। फास्ट लाइफ है यहाँ पर, बहुत फास्ट है। पता रियली पता नहीं चलता। अभी हमें आई थिंक हमें 1 घंटा ऑलरेडी बात करते हुए हो गए तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। पर यस, तो अच्छा चलो, उसका पढ़ाई का हमारे हमने बात की। उसके बाद आपने अभी आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। यस। उसके बारे में बताइए कि आपको कैसे मिली, क्या कितना स्ट्रगल करना पड़ा और वो सब। हाँ, ये है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक सर्टेन क्योंकि मेरा मुझे ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर टाइम लग रहा था अपनी एजुकेशन के ऊपर। और तो मेरे लिए बड़ा टफ था कि मैं जाके जॉब ढूंढूं, पर ये कि मैंने काफ़ी सर्च किए, काफ़ी लोगों को रीच किए। फिर मैंने बिजनेस डायरेक्टरी निकाली यहाँ पे, और बिजनेसेस को फ़ोन करना शुरू किए यूनिवर्सिटी और मेरे घर के पास, एंड ट्राई टू सी कि उनका ये जो कस्टमर सर्विस है ये सही चल रहा है, क्योंकि इसमें मैं बेस्ट था। एंड आई वांटेड टू explain them कि you guys need a better representation, so that's how I landed my job. I was calling those companies, और एक्चुअली अगर मैं झूठ ना बोलूं तो मैंने आपसे ये आइडिया पिक किया था बिकॉज यू टोल्ड मी वंस के वो जो वेयर हाउसेस you talked something about this in समवेयर। तो क्या कहते हैं, मैंने वहां से मैंने सोचा कि यानी बिजनेसेस को रीच आउट करना चाहिए एंड सी के यानी कहीं और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो, रादर देन जस्ट अप्लाइंग पैसिवली, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था बिकॉज आई ट्राइड सो मच। मे बी वो पैसेज ऑफ टाइम ऐसा था जिसमें जॉब्स काफी ज्यादा नहीं थी। सर, वेदर चेंज भी नहीं हो रहा था उस वजह से भी, पर क्या कहते हैं, मैंने काफी ज्यादा हर डोर बैंक किया एंड आई फाइनली गेट अ जॉब। मुझे इस तरह 2-3 इंटरव्यूज मिले, आई रीच लैंडेड देम। और इस तरह मैंने ये। यू आर वेरी राइट। आप अगर जनवरी फेब की बात कर रहे हैं, तो वो टाइम, उस टाइम पे यूके की मार्केट थोड़ी डाउन होती है।
वो इसलिए क्योंकि लोग क्रिसमस टाइम पे खर्चा कर लेते हैं That's so true. और उस टाइम पे सेल्स बहुत लगी होती हैं। Hmm. तो जनवरी जैसे ही न्यू ईयर गया, ये मार्केट यूके की जनवरी की मार्केट बहुत ठंडी होती है क्योंकि जनवरी में जब तक लोगों की सैलरीज आएंगी जी, तभी वो खर्च करना शुरू करेंगे ना, that's उससे so पहले true. तो वो ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। तो हम्म, ये हर साल इस तरह का होता है। तो जैन में फिर फेब में जब थोड़ा थोड़ा मार्च में सेल पिक होती है तो फिर उस हिसाब से जॉब्स भी निकलनी शुरू हो जाती हैं कि हाँ अभी मार्च में पिक कर रहा है। क्योंकि जैन और फेब में तो वो सेल लगाते हैं जो उन्होंने स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है, जो दिसंबर के लिए किया था। तो आपको फिर जॉब कैसे मिली और कब मिली, कितने टाइम बाद मिली? मुझे उसके लिए भी फिर भी 2 महीने कुछ वेट करना पड़ा, 2 ढाई महीने वेट करना पड़ा। मैंने काफ़ी कंपनीज में अप्लाई किया, देन फिर मैं थोड़ा सा फेडअप हो गया। मुझे लगा कि या तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ अप्लाई करने में, या मुझे कोई और रास्ता भी ट्राई करना चाहिए, बिकॉज नाउ आई एम रियली शॉर्ट ऑफ टाइम। देन आई रीच इट, तो मैंने बिजनेस डायरेक्टली निकाली और इस तरह यानी कंपनीज को फोन करना शुरू किया, एंड आई सी कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। एक्सप्लेन देम माय पोर्टफोलियो एंड सी। तो इस तरह मुझे ये जो मेरी कंपनी है, दैट वाज अ होलसेलर क्लोथिंग स्टोर, तो उन्होंने मुझे रीच किया, मुझे कहा कि प्लीज कम एंड विजिट अस। तो मैंने उसको अपना प्रायर एक्सपीरियंस के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम आपको कुछ वीक्स पर रख लेते हैं, विल डिसाइड के दैट कैन गो बेटर। तो फिर ग्रेजुअली दे विल सी माय वर्क, और फिर दैट्स हाउ मूव ऑन। तो मैं कुछ 2 महीने से काम कर रहा हूँ, एंड इट्स गोइंग ओके। तो मतलब विद इन 2 मंथ्स आपको एक तरह से जॉब मिल गई थी। जी। अच्छा, आपने पहले ये बोला कि आपको लगा कि मैं शायद कुछ गलत तरह से अप्लाई कर रहा हूँ, तो पहले आप कैसे अप्लाई कर रहे थे? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी दैट टाइम जब आपको लगा कि गलत हो सकती है? मेनली कि मुझे ऐसा लगा कि यानी सीवी का कोई एस्पेक्ट मिसिंग है, कि मुझे यानी हर तरह से ऑटोमेटिकली एक ही ईमेल आ रहा है कि कि एक न्यू कंपनीज एक नेक्स्ट प्रोसेस में पहुंच चुकी हैं और मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना शुरू किया और बाकी स्टूडेंट से बात की कि उनको भी क्या ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है और उनको क्या भी ऐसी ही ईमेल्स आ रही हैं। तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि यानी उनको भी यही सेम इश्यूज आ रहे थे। तो आई थॉट कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ चुके हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी एक्सेसिव है, इसी वजह से ये वाला तरीका काम करने ज़रा ज़्यादा नहीं है। अनलेस कि आपको यूके में एक्सपीरियंस हो जाए, दैट गिव्स यू अ बिट डिस्टिंक्शन एंड स्टैंड्स यू समवेयर एल्स अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स लाइन। तो वो चीज़ आपको थोड़ी देर में एज करती है, बट आपको बड़ा ही एक्टिवली जॉब सर्च करनी पड़ती है इनिशियली, सो इट्स नॉट वेरी इजी थिंग। सो क्योंकि यूजुअली मैंने ये चीज़ देखी है कि अक्सर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स लोन पे आते हैं। जो पाकिस्तान में लोनिंग का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। उन स्टूडेंट्स लोन इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, पर फिर भी आई मीन क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, जस्ट मेक श्योर कि स्टूडेंट्स बस केयरफुल रहे, दैट्स व्हाट आई तो वुड से। पाकिस्तान में लोन मिलता नहीं है या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज अलग हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसीज इमरान खान की रेगुलेशन टाइम के अंदर बहुत अच्छी थी, और मैंने उस टाइम एक घर के लिए अप्लाई किया था, तो आई गॉट द होम लोन। पर बहुत ज़्यादा फीजिबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर ये वाला। ये लोग डिफरेंट पैसे खर्च कर देते हैं, वहाँ पे बैड डेब्ट्स ज़्यादा होते हैं और बैंक्स लोन देने में काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं। अ, डिफिकल्ट प्रोसेस है, हाँ, मतलब एक तरह से कह सकते हैं। पेपर चलिए वर्क ठीक बहुत ज़्यादा है और बहुत है। ज़्यादा गारंटीज चाहिए, उन लेते हैं, तो ये एक मुश्किल है। वरना यहाँ पे यूके में मैंने देखा है और इंडिया में मैंने देखा है, यानी यहाँ पे लोग स्टूडेंट्स लोन्स के ऊपर पढ़ते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप अमीर हो तो आप तब भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इज अबाउट पाकिस्तानी 40 लाख रुपीज वेरी मच। रियली? जी, दैट्स सो ट्रू। और यूनिवर्सिटीज़ बड़ी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका मेरिट बहुत हाई होता है और कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है, सो इट्स वेरी हार्ड टू गेट education in a government university. I was very lucky I got education in my like in a government university, but it's very difficult। और फिर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी चार्ज अ लॉट ऑफ मनी। मुझे इसलिए पता क्योंकि मैंने व्हेन आई हेल्प माय सिस्टर टू गेट एडमिशन इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो मैंने रियलाइज किया कि
मेरी टोटल बीबी ऑनर्स की सारी फीस जो थी वाज अबाउट 2 लाख रुपीस पाकिस्तानी। uh, और मेरी सिस्टर की कोई 14 लाख से ज्यादा थी, बिकॉज आई एम द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, और मुझे रियलाइज हो गया ये मुझे पे करना है, और ये नहीं। So तो मैं which means is much cheaper in UK, then education is much cheaper. I नो, mean, इट्स वेरी कंपैरेटिवली वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन इवन इन पाकिस्तान वहाँ पे आप लोन के साथ नहीं पढ़ सकते, मतलब लोन आपको एजुकेशन के लिए नहीं मिलेगा। सो दैट वाज द मेन एजेंडा, पर अदर देन दैट वहाँ पे एजुकेशन सस्ती है, पर फिर भी पाकिस्तानियों के लिए काफी एक्सपेंसिव है, और अपॉर्चुनिटीज कम है, और वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि बहुत लोग population. जैसे इंडिया में है, लोग बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए। दिस इज द वे आउट ऑफ पॉवर्टी, टू बी ऑनेस्ट, एंड दैट्स इट इज रियली। और अगर ऐसे सोच के ना किया जाए तो, बट स्टिल। Yeah. चलो. Okay. So what after that? I mean, उसके बाद आपने एजुकेशन यहाँ पे शुरू कर दी, आपकी जॉब यहाँ पर अभी हो गई है। तो अभी आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में मतलब किस तरह के पर्सपेक्टिव्स हैं यूके के अंदर? आप व्यूअर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? अभी तक का जो आपका 4 महीने का एक्सपीरियंस है, हालाँकि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल एक्सपीरियंस इज़ एन एक्सपीरियंस। तो यस। अभी आपको क्या लगता है कि यूके के अंदर क्या है? पहली चीज़ तो आप फ्यूचर कैसा देखते हैं अपना? और लोगों का जो आपके साथ में जो और स्टूडेंट हैं, उनको क्या लगता है? दूसरा ये कि बहुत सारे लोग इस तरह के वीडियोज़ भी बना रहे हैं कि यूके मत आओ, बिल्कुल ही ना आओ, वहाँ तो जॉब्स है ही नहीं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको फेयर ओपिनियन दूंगा अपना, कि यूके के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, एंड यूके ने अगर यहाँ पे आपको बुलाया है, तो दे कैन एक्चुअली हैंडल द वेट ऑफ यू। इट्स जस्ट अबाउट कि आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि यूनिवर्सिटी यूके के कुछ सिटीज के अंदर जहाँ यूनिवर्सिटीज का फ्लो ज्यादा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स का रुझान काफी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे uh, उन सिटीज के ऊपर बर्डन ज्यादा है, आई वुड से, कि जॉब्स का और बाकी सारी चीजों का। पर once you get out of the university, you will get a lot of options all across UK, जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी आना जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पर भी मूव ऑन कर सकते हो। सो ऐसा नहीं है कि यूके में हालात बिल्कुल ज्यादा खराब है, जस्ट के यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, यू नो, हुँ, अनसर्टेनिटीज के लिए आपको प्रिपेयर होने की बहुत जरूरत है। तो आपको लगता है कि पहले जो फर्स्ट लाइक कपल ऑफ मंथ्स इट इज़ पॉसिबल बिकॉज़ दे हैव टू find a job and all that, so they might need to struggle for a couple of months, but you will get something within like 2 or 3 months. What is That's your so true. experience on that? And what about your friends? Did they got the jobs as well? The people you Yes. know? मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट द जॉब एट द सेम टाइम, क्योंकि हम सब ढूंढ रहे थे कि हम सबको जो मेरे फ्रेंड्स हैं, बेसिकली दे आर मेरी इंडियन फ्रेंड्स, वह क्या कहते हैं, उनको भी मेरे ही टाइम के साथ ही जॉब मिली। तो रियलाइज के यानी वो जब फरवरी गुजरा, तो उसमें सबको ग्रेजुअली जॉब मिलने लगी। तो यानी दैट वाज मेनली, यू वाज राइट, के उस टाइम पीरियड का ही इफेक्ट था। और ये स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअली आई गेस के यूके के और कहीं भी होता ही है, कि इतने में आपको आपके टेस्ट और स्किल के हिसाब से जॉब मिलने में टाइम लगता है। Hmm. ऑफ कोर्स दैट्स नॉट रिलेटेड टू दैट, बट स्टिल के टाइम आपको इतना लगता ही है जॉब ढूंढने में। Okay, that's good. So फ्यूचर के लिए आपको क्या लगता है? अभी फ्यूचर में अभी तो चलिए पार्ट टाइम जॉब चल रही है, लेकिन जब डिग्री वगैरह हो जाएगी तो उसके लिए क्या लगता है? लेट्स टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म थिंग कि आगे That's क्या it. क्या लगता है आपको? जब मैं यहाँ पे आ रहा था, तब मैंने ये देखा था कि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद दैट इक्वलाइज मी टू लेवल 7, जो यानी बहुत अच्छा लेवल है। तो आई एम श्योर कि मैं अपनी काफ़ी स्किल्स और एबिलिटीज एनहांस कर रहा हूँ, एंड दैट विल लैड मी टू अ बेटर पोजीशन। मेरी जो कोर्स है उसका एक प्लेसमेंट ये भी है, तो आई एम इन सर्च ऑफ प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स। तो आई विल सी के कौन सा वे आई वुड लाइक टू टेक डाउन। बट यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है, एंड इट्स जस्ट अबाउट हाउ मच टाइम यू एंड एफर्ट्स यू पुट इन। दैट्स हाउ आई बिलीव इन। तो
आप काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं और आगे ग्रोथ चांसेस भी ज्यादा हैं PSW पे। आप और बेहतर तरीके से काम कर सकते हो, आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और अ, आप आपके पास काफी टाइम होता है कि आप अपना एक राइट टेस्ट एंड स्किल्स के अकॉर्डिंगली जॉब ढूंढ सको। सो आई मीन यूके अलाउज यू इनफ टाइम आफ्टर योर ग्रेजुएशन कि आप अपने बेहतर जॉब ढूंढ सकते हो। सो या आई मीन आई थिंक इट्स ब्राइटर। ओके, मैंने एक वीडियो में देखा, वीडियो में वो लोग बोल रहे थे कि यूके आना तो यहाँ पर आकर तुम खजल हो गए। तो आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की सिचुएशन है यूके के अंदर? मुझे लगता है जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए जो आपने टिपिकल लाहौरी वर्ड यूज किया है खजल, वो होना ही पड़ता है। लेकिन ये कि वेल सेड, या ऑब्वियसली बिना खजल हुए तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, मतलब मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। इंसान की जो हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो उसी तरह से बनाई गई है कि जब तक आप कुछ करोगे नहीं, तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल। सिंपल सी बात मैंने बस कहीं ये सुना था कि अगर अक्सर लोगों से पूछा जाए कि उनके व्हाट दे ड्रीम अबाउट, तो आपको बहुत ज्यादा फैंसी स्टोरी सुनाएंगे कि आई ड्रीम अबाउट दिस, गोइंग टू पेरिस, मेकिंग मोर मनी एंड स्टफ। वो जब उनसे पूछा जाए कि उन्होंने उसको अचीव करने के लिए व्हाट दे टेक अ स्टेप ऑन ओवर इट, तो वो शायद आपको कुछ और ना बता पाए। तो है। हाँ, वो नहीं पता होता है। या वेरी गुड। ओके, नाउ एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन जो कि अक्सर लोगों के ज़हन में रहता है। आपको जैसे आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उसमें व्हाट डू यू थिंक कि इज़ इट सफिशिएंट फॉर द एक्सपेंसेस? अगर कोई ऐसा सोच रहा हो कि हम लोग चले जाते हैं स्टूडेंट लोन लेके, कुछ भी है, वहाँ पर जाके फीस पे कर देंगे, रहना भी है। व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट सफिशिएंट कि एक पार्ट टाइम जॉब 20 आवर जॉब से यू कैन डू ऑल दैट, पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? व्हाट डू यू थिंक? पार्ट टाइम अगर आप अगर फैक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते भी हो तो दैट इज लाइक 20 आवर्स एंड दैट मेक्स यू अबाउट 800 पाउंड्स, 800 900 पाउंड्स अ मंथ। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी की फी, आपको ज्यादा एक्सपेंसेस यहाँ पे यूनिवर्सिटी की फीस के होता है, और अगर आपने नहीं दी हुई या अकोमोडेशन के होते हैं। हुँ, तो इसके अलावा बाकी अगर आप ग्रोसरी की निकाल दो तो आई मीन आपको काफी पैसे बच जाते हैं, अगर आपने ये एक्सपेंसेस पहले मैनेज किए हुए हैं और या आप करके आए हो। अ, तो बस ये है कि आपको अपने फंड्स मैनेज करने का तरीका, और आपको पता है कि आपके फंड्स की कैपेसिटी कितनी है, तो उसी अकॉर्डिंगली मैनेज करके आए, जस्ट अबाउट दैट। हाँ। और ये 7-8 800-900 पाउंड, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट विद द मिनिमम वेज, इसके मिनिमम यस, वेज यस, अगर यस, इतनी होगी तो? यस। जी, हुँ, क्योंकि एनआई में स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को इतना ही पे मिलता है, विच इज अबाउट 1150 एट द मोमेंट आफ्टर अप्रैल, हुँ। द मिनिमम I वेज। think if I'm not wrong, it also depends on the type of job you are doing. That's exactly, yes. Some jobs are, I mean, you can get maybe 13-14 pound as well. Like कुछ ऐसे places हैं जो देते हैं वेयर हाउसेस वगैरह की जॉब, जो कि लो स्किल जॉब्स हैं। I would say, even I use that word low skills or no skills. ऐसी कोई जॉब नहीं है जिसमें स्किल की ज़रूरत ना हो, नहीं, यू नो? बिल्कुल, बिल्कुल, एटलीस्ट बिल्कुल। आपको कुछ तो स्किल चाहिए। अरे भाई, आपने अगर लेट्स सपोज़ आपने कुली का ही काम करना है, तो आपको वो बोझा उठाने की भी तो स्किल चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, उसको ऐसा ज़मीन से कैसे उठाना है विदाउट हार्मिंग योरसेल्फ। तो हुँ। स्किल्स ऑलवेज़ नीडेड। बट आपने भी स्किल्स की बात की थी कि स्किल्स सीखनी चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स डू यू थिंक इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द यूके जॉब्स? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि स्टूडेंट्स को ड्राइविंग सीख के आनी चाहिए। मैं ड्राइविंग सीख के आया था। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि एट सम लेवल आपको यहाँ पे गाड़ी की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अक्सर जॉब्स होती है। तो अगर आप अपने आप को थोड़ा-सा, आपको बहुत ज़्यादा चलने की आदत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है और बस के पीछे भागना पड़ता है। अगर आपको वो नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके आएँ। इसके अलावा अगर आपके पास डिफरेंट स्किल्स और भी, अब अगर आप उस पे काम करके आते हैं, लेट्स से यू गॉट एनी अदर, लाइक आपके पास आईटी स्किल्स हैं या कोई भी आपका, आप जिस स्किल्स में अच्छे हो, यू कैन एक्चुअली सेल इट ऑनलाइन। तो ये का, और ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स खास तौर पे, वो तो आपको आइल्स करते हुए फेस करना ही पड़ता है।
पर मेजर इस तरह के जो स्किल्स हैं जो हार्ड जॉब्स, जैसे कि अगर आपको यू इफ पीपल आर हेयर स्टाइलिस्ट और कोई और उनको बेहतर स्किल आता है तो जिससे वो एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर सकते हैं, वो एक अच्छा चीज है। तो दैट्स नाइस, लाइक प्लम्बरिंग और इस तरह के हार्ड जॉब्स भी, और ड्राइविंग और सॉफ्ट स्किल्स अगर आप कुछ और भी कर सकते हो, लेट्स से हैंडलिंग क्लाइंट्स। और तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने डाइवर्स हो सकते हो एक जॉब को मेंटेन करने के लिए अपने स्किल्स के साथ। अगर हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर नॉट जस्ट टॉकिंग इज रीडिंग राइटिंग, ये सब चीजें आती हैं जो कि आइल्स के अंदर होता है। स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, वो जो 3 जो आइल्स के अंदर होते हैं। दूसरा ये आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस की आपने बात की, ड्राइविंग की बात की, वो एक बहुत ज़रूरी है इस कंट्री के अंदर। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर जिसने यूके में आकर ड्राइविंग लाइसेंस ले गया, दैट मीन्स इस 25% सिटीजनशिप यूके की मिल गई। काइंड ऑफ दैट, ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल काम है। आपने चाहे चाहे वहां पर 20 साल ड्राइविंग की हो, दैट डजंट मैटर, आपको यहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन आप 1 साल के लिए इंटरनेशनल लाइसेंस बनाकर ला सकते हैं अगर आपको वहां पर ड्राइविंग आती है तो। और ड्राइविंग अगर आपको आती है तो यहाँ पर गाड़ियां आपको बहुत सस्ते में मिल जाती है। मतलब आपको इवन सस्ती सस्ती गाड़ी आपको 70-80 हजार में भी मिल जाएगी। मैं इंडियन रुपए की बात कर रहा हूँ, मतलब 700-800 पाउंड में मिल जाएगी, और वो फिट गाड़ी होगी, चलने लायक होगी। हाँ, खर्चा मांगेगी ऑब्वियसली, थोड़ी पुरानी होगी, लेकिन वो यहाँ पर एक साल में एक दफा एमओटी होता है, क्योंकि गाड़ी का एक तरह से पूरा, जैसे वो इंडिया पाकिस्तान में वो ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं ना, तो वो उसी तरह से गाड़ी का टेस्ट करते हैं एमओटी, जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है। गवर्नमेंट के जो एमओटी स्टेशन होते हैं वहां पर होता है वो, गवर्नमेंट एक्रेडिटेड। तो वो करने के बाद आपकी गाड़ी फिट रहती है। अगर आपकी गाड़ी फिट नहीं है तो वो फेल कर देंगे और आपकी गाड़ी रोड पर नहीं चल सकती है उसके बगैर। तो गाड़ी मिल जाती है उसके, गाड़ी अगर आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस आप वहां से लेकर आ रहे हैं, तो आप डिलीवरी की जॉब्स यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, टेक अवे डिलीवरीज की, जिसमें कि काफी अच्छा पैसा मिल जाता है। और वो भी आप शाम को, टेक अवे जब चालू होते हैं शाम के बाद ही ज्यादातर काम होता है उनका, आप उसको कर लें। बहुत से लोग स्टूडेंट आके यहाँ पे डिलीवरी का काम कर रहे हैं, जो कि गाड़ी पे नहीं लेकिन बाइक्स के ऊपर करते हैं, साइकिल्स के ऊपर करते हैं जो डिलीवरी वगैरह। तो उस तरह की उसको हम कह सकते हैं कि अनस्किल्ड, पर स्टिल थोड़ी कुछ तो स्किल चाहिए उसे, साइकिल चलाने की तो स्किल चाहिए होगी ना उसको। अपने आप को सेफ कैसे रखना रोड पे, वो भी स्किल चाहिए होगी ना। और कौन सी लेन में चलाना है, बिकॉज यहाँ पे ये बड़ा हाँ, ये भी है। तो साइकिलिंग की अलग लेन होती है और उसको प्रॉपर कई बार दूसरी लेन में भी जाना पड़ता है। तो मतलब काम की कमी नहीं है ताहिर, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, कि काम है इधर। तो बहुत कुछ हो सकता है। स्पॉन्सरशिप की अगर हम बात करें तो आई नो अभी आपको बहुत कम टाइम हुआ है यहाँ पर आए हुए, और आपके पास अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है, आपके पास अभी आगे पीएसडब्ल्यू का भी टाइम होगा, पोस्ट स्टडी वर्क वीजे का भी। बट अभी तक कोई ऐसे आपने स्टोरी सुनी कि लोगों को स्पॉन्सरशिप मिलती है, नहीं मिलती है? जस्ट आपके नॉलेज में कुछ ऐसा आया? ऑब्वियसली कोई ना कोई बात तो हुई होगी फ्रेंड्स के साथ में। हाँ, मतलब ये नहीं, अक्सर मेरे कुछ फ्रेंड्स को मिली भी है व्हेन आई वाज हैविंग अ सोशल गैदरिंग विद देम, सो दे वाज टॉकिंग अबाउट इट। मेरे कुछ फ्रेंड्स को ऑफर भी हुई है, जो जिन जिन उनमें से एक ने उसको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज दे वांटेड टू फोकस ऑन द एजुकेशन साइड फर्स्ट। तो डिपेंड करता है कि आप यानी किस तरह की स्पॉन्सरशिप पे काम करना चाहते हैं। हर बंदे का एक अपना रूट होता है। तो इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज भी कम है, इट्स जस्ट कि आप कहाँ सेटल इन होना चाहते हैं, आई मीन व्हाट यू आर लाइकिंग इनटू। पर मैं आपको ये सबको ये सजेस्ट करूंगा, प्लीज इस वजह से किसी के साथ एक्सप्लॉइट ना हो, अपने आप को करवाएं, और यू नो जस्ट अपने स्किल्स पे काम करें। इफ यू गॉट नाइस स्किल्स, आई एम श्योर कि यू विल लैंड समवेयर। जो आप लोग अपने स्किल्स के साथ यहाँ भी तो आए हो, तो आई एम श्योर कि आप आगे भी सक्सेस करोगे। बट आई मीन यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आपको इस बात से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे भी। सो इवन दिस इज समथिंग दैट आई हैव फेस्ड इन द पास्ट, सो बट स्टिल के मेक श्योर करें कि आप यानी अपना एजुकेशन कंप्लीट करें। वंस यू गेट द एजुकेशन सॉर्टेड, यू विल हैव अहेड ऑफ टाइम, और आप उसको बेहतर तरीके से सोच सकते हो कि अब मेरी एक्चुअली कैपेबिलिटीज क्या है,
एंड व्हाट क्वालिफिकेशन आई हैव गॉट और मुझे किस तरफ जाना है. तो टू अर्ली, डोंट मेक डिसीजन टू अर्ली, आई वुड से. या काफी लोगों का फोकस होता है आने के बाद, ऑब्वियसली वो अंडरस्टैंडेबल है, उनका फोकस जॉब की तरफ ज्यादा होता है इंस्टेड ऑफ स्टडीज, क्योंकि उनको लोन लेकर आए हैं, पैसे बहुत कम है, 1 महीने ही शायद खर्चा निकल सकता है, तो उस तरह से, क्योंकि हर एक के पास तो इतने फंड्स नहीं होते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक, वो फोकस, इज इट राइट फोकस कि खाली जॉब पे फोकस कर रहे हैं, या बैलेंस्ड होना चाहिए स्टडी और उसमें, व्हाट इज योर थिंकिंग ऑन दैट, कि एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेशन तो स्टडी से मिलना है आगे. तो यार आपको प्रोग्रेशन क्या, यानी सब कुछ मिलना ही एजुकेशन से है. दिस इज अ टेम्परेरी जॉब रोल जो आपको सर्वाइवल के लिए मैटर करती है, बट आई वुड से कि एजुकेशन इज फार मोर इम्पोर्टेंट. और अगर आप एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हो तो, और उसके बाद काफी चीजें आसान हो सकती है. अगर आप थोड़े से पैसों के लिए अगर हम अपना आवर्स खराब करेंगे तो यानी आई मीन तो फिर अगर हम कॉस्ट वाइज भी कंपेयर करें तो आई मीन वी हैव स्पेंट सो मच ऑन आवर एजुकेशन सो फार. सो आई मीन तो अपना ही नुकसान है अगर हम कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस भी करें. तो डोंट डू दैट, आई वुड से. Okay. Tahir, I think we are coming to the end of this podcast. आपसे बात करके बहुत ही मजा आया एक्चुअली. और अभी जैसे-जैसे आपका टाइम आगे जाएगा, तो आई थिंक वी शुड डू ए कपल ऑफ मोर पॉडकास्ट विद यू. जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो उसको शेयर करेंगे. लेकिन इस पॉडकास्ट को फिनिश करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क एनी फ्यू टिप्स इन द बुलेट पॉइंट्स हमारे ऑडियंस के लिए, जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए, और जो लोग यहाँ पर हैं उनके लिए, कोई ऐसा मैसेज या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप बताना चाहें कि भई ये चीज़ें ज़हन में रखें, इससे आपको बेनिफिट हो सकता है? हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि आप जब यहाँ पे आएँ तो सबसे पहले अपना एक टाइम प्लानर के ऊपर ज़रूर काम करें, क्योंकि यहाँ की लाइफ़ आते ही आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है. आपको जेट लैग भी होता है और उसके बाद आप यानी अब यहाँ के टाइम टेबल से मैनेज नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि यहाँ की टाइम की पेस बहुत तेज़ है. तो आप अपना स्केड्यूल और हर चीज़ पहले से करके आएँ, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको करने, तो वहाँ से रिसर्च करके आएँ ताकि आपका यहाँ पे इस वाले मकसद में टाइम सेव हो जाए. और इसके अलावा आप अपने फाइनेंस का खास तौर पे ख्याल रखें. यहाँ पे आते ही आईफ़ोन लेने की कोशिश ना करें. हुँ, अपने पैसे बचाएँ. और आई वुड से कि अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप यहाँ पे आके तो अपनी लेन सीख के साइकिल ले लें. दैट सेव्स योर टाइम, एंड वरना आपको पूरा मंथ का उतने का पास पड़ेगा. तो ये छोटी-मोटी सजेशंस हैं. और दूसरा ये कि एक्टिवली आने से पहले ही जॉब्स के ऊपर थोड़ा-सा हाथ टाइट करके आएँ. और वहीं से ही इंटरव्यूज़ वगैरह अपने आप को स्ट्रीमलाइन करना सीखें, क्योंकि ये मुल्क आपको ये ज़रूर सिखाता है कि अपने आप को स्ट्रीमलाइन कैसे करना है. यहाँ पे खाने से लेके हर चीज़ आपको सेल्फ इंडिपेंडेंसी भी सिखाता है. तो आपको इन सब चीज़ों में थोड़ा-थोड़ा अगर एरियाज़ में देख के आएँगे तो दैट रियली हेल्प्स. अदरवाइज़ यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल करेंगे, खाने में और पढ़ने में और अपना टाइम मैनेज करने में. तो ये आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का टेस्ट है. ये आपकी हार्ड वर्किंग स्किल्स का टेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि नियर पाकिस्तान में तो हम लोग सारे बड़े सॉफ्ट जॉब कर रहे होते हैं ऑफिस में बैठ के हमें, और बड़े-बड़े घर होते हैं. तो ये एक्सपीरियंस यहाँ का ज़रा थोड़ा-सा डिफरेंस है. यहाँ पे थोड़े से और छोटे घर होते हैं. आपको ऐसा लगता है कि आपको बस कैदी नंबर नहीं है दरवाजे के बाहर, बाकी तकरीबन जितना जितना बड़ा इंडिया पाकिस्तान में हमारा लिविंग रूम होता है, उतना बड़ा यहाँ पे पूरा घर होता है. दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू. ओके. ताहिर, जाने से पहले जी. पाकिस्तान में जो हमारे भाई-बहन जो हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए मैसेज आप अपने अंदाज़ में, आई डोंट नो हाउ यू गोना से, ख्वातीनो हज़रात, प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. तो अपने अंदाज़ में, आई डोंट नो इफ आई सेड इट राइट और रॉन्ग. नहीं, ख़वातीनो हज़रात इज़ ऑलराइट, या आप कह सकते हैं भाइयों और बहनों. प्लीज़ फॉलो डॉक्टर मनदीप्स पॉडकास्ट विद देशी भारती. और ये बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ाते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है इनसे.
और ये हर इंडिविजुअल का उतना ही ख्याल रखते हैं क्लास में, फैमिली मेंबर की तरह, विच इज एन अमेजिंग पार्ट। मुझे क्लास में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि किसी बंदे की चाहे वो नाइजीरियन है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, या किसी भी उससे ताल्लुक रखता है, कि उसकी लेस पार्टिसिपेशन है इन क्लास। तो प्रोफेसर के लिए ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि वो सबको बहुत प्यार से हैंडल करते हैं। और दैट्स व्हाई मे बी मैं अपने सेकंड सेमेस्टर में ज्यादा बोर हो गया हूँ, क्योंकि प्रोफेसर की क्लास बहुत एंगेजिंग होती थी। अल्लाह पाक आपके लिए बहुत आसानी करे सर। और भाई अब मैंने आपको चैनल की मशहूरी करने के लिए बोला था, अपनी मशहूरी करने के लिए नहीं बोला था। बट एनीवे, जैसे कि आपने अभी नाम लिया चैनल का विदेशी भारती, हमने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, अभी हमने कर दिया विदेशी शो। हाँ, वो दैट्स स्वीट। वो इसलिए क्योंकि पहले विदेशी भारती दैट वाज़ जस्ट फोकस्ड ऑन इंडियंस, तो भारत के ऊपर। दैट्स राइट, यस। तो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि हमें फ़ॉलो करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं और सभी से प्यार मोहब्बत बनी हुई है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी हैव टू ब्रिंग इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी। तो जो हमारे पाकिस्तानी जो व्यूअर्स हैं, उनके पास भी जाना चाहिए, बांग्लादेशी के पास भी जाना चाहिए और नाइजीरियन के पास भी जाना चाहिए। तो मैंने अभी कल कुछ लोगों के साथ में जो नाइजीरिया से हैं, उनके साथ भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं। तो इसीलिए हमने चैनल का नाम बहुत जल्दी उसको मतलब अभी हमें 2-3 वीक ही हुए हैं चैनल शुरू किए हुए, और उसकी रीच बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप लोग भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के ऊपर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ जो हमारे इंडिया से, पाकिस्तान से और दूसरी कंट्री से जो लोग इमिग्रेंट्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आके बहुत अच्छे एस्टेब्लिश हो गए हैं, उसके अंदर हमारे आप होंगे जो डॉक्टर्स एनएचएस में काम कर रहे हैं, जो नर्सेज़ हैं वो काम कर रही हैं, और हमारे जो काफ़ी साइंटिस्ट हैं, लेक्चरर्स हैं, और अलग-अलग प्रोफ़ेशन के अंदर अलग-अलग बिज़नेसमैन, बिज़नेसेस जो जिन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं यूके के अंदर, उन सब लोगों को हम इस चैनल के ऊपर लेकर आ रहे हैं, और जो अपनी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर में यूके की जो ग्राउंड रियलिटी है, वो किस तरह की ग्राउंड रियलिटी है, और आपको किस तरह के टिप्स वो देंगे और स्ट्रैटेजीज़ वो देंगे। तो इस तरह के और भी स्पेशली, सॉरी टू बॉदर यू, वो भी वो लोग जो यानी एक्चुअली इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, सिर्फ वही फेसबुक से रैंडम पर्सन नहीं कि यूके ना जाओ, इंडिया ना जाओ, हाँ। यू नो। और ऑब्वियसली पॉडकास्ट करने का इसका मोटिव ये है कि ऐसे नहीं है कि गली में किसी को भी रैंडमली चलते हुए पकड़ लिया कि बता भाई इसमें यहाँ यूके में जॉब है, वो बोलेगा नहीं है, मुझे तो नहीं मिली, यहाँ कोई जॉब नहीं है। नॉट लाइक दैट। जैसे कि हमने आज ताहिर से बात की, बड़े इत्मीनान के साथ में हमने अपने व्यूज शेयर किए। तो इस तरह से पॉडकास्ट आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा लंबा होता है लेकिन इंफॉर्मेटिव होता है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है पॉडकास्ट के जरिए। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरे लोगों के साथ में, ताकि अगर आप अक आपको पसंद आ रहा है तो हो सकता है दूसरे लोगों को भी पसंद आए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, उसको क्या बोलते हैं उर्दू में, हौसला अफ़ज़ाई होती रहे हमारी। और